کہ جی اب وقت یہ آ گیا ہے کہ ان معاملات کو آپ طے کر لیں تاکہ بار بار جو ہے کانفلکٹ نہ آئے، وار کی طرف نہ جائیں. دونوں ملک جو ہیں وہ اٹامک پارٹس آپ سمجھتے ہیں کہ سعودی عرب نے سیز فائر کے لیے کس طرح سے کردار ادا؟ آپ یہ دیکھیے کہ 22 کو پہلگام ہوتا ہے اور 24 کو سعودی وزیر خارجہ جو ہیں پرنس فیصل بن فرحان، ان کی فون کال آتی ہے ہمارے فارن منسٹر کو اور انڈین فارن منسٹر. جتنی بھی ڈیولپمنٹس ہیں سعودی عرب کے اندر، اس میں فارن مین پاور کا یقیناً ہاتھ ہے، اور اس میں انڈیا اور پاکستان دونوں اہم. سعودی عربیہ نے واقعی امپورٹنٹ پلیئر کے طور پہ، موسٹ امپورٹنٹ پلیئر کے طور پہ ابھرا. یہ بھی عجیب اتفاق ہے کہ جب بھی کوئی ہائی لیول وزٹ ہوتی ہے امریکہ سے تو انڈیا میں کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، وی نیوز کے ساتھ میں ہوں فیصل کمال بادشاہ. ناظرین، پاک بھارت جنگ جو ہے ایک طرح سے ختم ہو چکی ہے اور اب ڈی ایسکلیشن کی طرف ہم لوگ جا رہے ہیں. جس طرح سے کل چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل سائر شمشاد مرزا نے بھی کہا کہ ہم 22 اپریل سے پہلے کی صورتحال کی طرف واپس جا رہے ہیں. لیکن اس جنگ بندی میں، اس سیز فائر میں جو کردار ہمارے برادر ملک سعودی عربیہ نے ادا کیا وہ بڑا ہی کومینڈیبل ہے، لائق تحسین ہے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں جناب جاوید حفیظ صاحب، پاکستان کے سابق سفیر ہیں اور سعودی عربیہ میں بھی پاکستان کی نمائندگی کر چکے ہیں. سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. جی بہت شکریہ دعوت دینے کا، بلانے کا. جی اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ اوور دا ایئرز جب سے محمد بن سلمان صاحب جو ہیں وہ ان کے ہاتھ میں آئے ہیں زمام اقتدار، تو سعودی عربیہ ایک بڑا اہم پلیئر بن کے ابھر رہا ہے، خاص طور پہ میڈیشن کے حوالے سے. وہ رشیا اور امریکہ کے درمیان یوکرین کے تنازع پہ میڈیشن ہو یا دیگر امور ہوں، تو سعودیہ ایک بڑا اہم پلیئر بن رہا ہے. آپ سعودی عربیہ کے اس کردار کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جی بالکل، میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ سعودی عربیہ نے جو ہے جہاں تک وساطت یعنی میڈیشن کا تعلق ہے، بہت اہم جو ہے وہ رول ادا کیا ہے یوکرین اور رشیا کے درمیان میں. اور اسی طرح ان کے بلکہ مذاکرات بھی ریاض میں ہوئے. اسی طرح سے سعودی عرب نے آج سے 2-3 سال پہلے چین کی وساطت سے ایران کے ساتھ اپنے معاملات ٹھیک کیے. تو سعودی عربیہ نے واقعی جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ پلیئر کے طور پہ، ریجنلی موسٹ امپورٹنٹ پلیئر کے طور پہ ابھرا ہے، اور اس کی میڈیشن کو باقی لوگ مانتے ہیں اور اس کا ایک رول ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی جب گلف کے ممالک کے دورے پہ آئے ریسنٹلی تو سب سے پہلے سعودی عرب گئے. تو اس لحاظ سے سعودی عرب کا ایک سٹیٹس ہے، ایک پوزیشن ہے. جی اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ یہ جو 6 مئی کو سٹارٹ ہوا، پاک بھارت کانفلکٹ سٹارٹ ہوا، اور پھر بڑا ایک اس حوالے سے ایک خطرہ تھا، خدشہ تھا کہ کہیں ہم لوگ نیوکلیئر وار کی طرف نہ چلے جائیں، لیکن اس کے باوجود بھی ایک بہت ہیوی قسم کی ایکسچینج آف فائر ہوا دونوں اطراف سے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ جو سعودی میڈیشن ہے اس نے کام کیا. پھر جب عادل الجبیر جو ان کے منسٹر آف اسٹیٹ فار فارن افیئرز ہیں وہ آئے، پہلے وہ دلی میں جے شنکر سے ملے، پھر پاکستان میں ملے، اور پھر اسی روز ہم نے دیکھا کہ دونوں ممالک کے درمیان سیز فائر کا اعلان ہو گیا. یہ سر اس میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سعودی عرب نے سیز فائر کے لیے کس طرح سے کردار ادا کیا؟ سعودی عرب نے سیز فائر میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے. ایک تو آپ یہ دیکھیں کہ 22 اپریل کو پہلگام کا واقعہ ہوا، جس کو پاکستان نے کنڈیم کیا. اور جب انڈیا نے اوور ریئیکٹ کیا بائی سسپینڈنگ دی انڈس واٹر ٹریٹی، تو پاکستان نے فوراً یہ کہا کہ آپ ایک انڈیپینڈنٹ انٹرنیشنل انکوائری کروا لیجئے، پروب کروا لیجئے، جسے انڈیا نے ریجیکٹ کیا. تو گلف کے ممالک نے یہ دیکھا کہ پاکستان جو ہے اس کی پوزیشن جو ہے وہ زیادہ ریزنیبل ہے. انڈیا جو ہے وہ ایک ہٹ درمی پہ اتر آیا ہے اور اس نے
अब एक इल्जाम लगा के इट जंप्ड टू एस्केलेटिंग द सिचुएशन। अब वो अंग्रेजी में कहते हैं कि यू कांट बी ए प्रोसिक्यूटर एंड अ जज इन योर ओन केस। तो उस लिहाज से इंडिया की पोजीशन अनरीजनेबल थी। तो आप ये देखिए कि 22 को पहलगाम होता है और 24 को सऊदी वजीर खारजा जो है प्रिंस फैसल बिन फरहान जी उनकी फोन कॉल आती है हमारे फॉरेन मिनिस्टर को और इंडियन फॉरेन मिनिस्टर को। जी तो इस लिहाज से शुरू से ही सऊदी अरेबिया उसमें एंगेज हो गया था। और उसके बाद आप जैसे ही एस्केलेशन ज़्यादा हुई तो आदिल जुबैर आए, दिल्ली भी गए और इस्लामाबाद भी आए। तो सऊदी अरब का रोल जो है वो बहुत की रोल रहा है इस डी एस्केलेशन में और सीज फायर के करवाने में। इसको आप ज़रा मुआवजा करें कि मैं जब देखता हूँ मशरिक़ वस्ता की तरफ तो मिडल ईस्ट में सिर्फ एक मुल्क था जो मुकम्मल तौर पर इंडिया के पीछे खड़ा था और वो इसराइल था। बिल्कुल। दूसरा आप देखें कि इनिशियल रिस्पांस जो यूनाइटेड स्टेट्स का था, जेडी वैंस जो हैं, जैसे कि आपको पता है कि उन दिनों में जब ये पहलगाम हुआ तो वो इंडिया के दौरे पे थे। और ये भी अजीब इत्तेफाक है कि जब भी कोई हाई लेवल विजिट होती है अमेरिका से तो इंडिया में कुछ ना कुछ हो जाता है। ये इत्तेफाकन तो नहीं हो सकता। बहरहाल जेडी वैंस जो है उनका इनिशियल रिस्पांस ये था कि ये जो मामलात बिगड़ रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, ये एक बायलैटरल इशू है, इसको ये खुद दोनों मिलकर सॉल्व कर लेंगे। जबकि सऊदी अरब ने बीइंग क्लोजर geographically to India and Pakistan and having deep cultural and religious relations with Pakistan and economic relations with India, उन्होंने शुरू से ही रियलाइज किया कि इस चीज को, इस खतरे को शुरू में ही इसको कंटेन करना चाहिए। चुनाचे सऊदी एफर्ट्स जो हैं दे वर मोर रियलिस्टिक, दे वर मोर कंसर्टेड। तो उससे डेफिनेटली सीज फायर करवाने में बहुत मदद मिली। जी। अच्छा सर, सऊदी अरेबिया के जो ट्रेड रिलेशंस हैं वो दोनों ममालिक के साथ हैं, इंडिया के साथ भी हैं, पाकिस्तान के साथ भी हैं। बज़ाहिर तो हम देखते हैं कि इंडिया जो है वो खासतौर पे कश्मीर के मामले पे वो ये कहता है कि मुझे किसी की सालिसी की ज़रूरत नहीं, लेकिन हम देख रहे हैं कि वहाँ पर अब जो इंटरनल क्रिटिसिज्म है वो काफ़ी बढ़ गई है जब से ये एम्बैरेसमेंट फेस करना पड़ी है इनकी मौजूदा गवर्नमेंट को। आप क्या समझते हैं कि सऊदी अरेबिया जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं जिसमें कश्मीर सरफहरिस्त है, उसमें आइंदा आने वाले वक्त में कोई रोल प्ले कर सकता है? जी, मेरे ख्याल में देखिए उस जमाने में सऊदी अरेबिया के अलावा रीजनल कंट्रीज में से ईरान ने भी रोल प्ले किया, लेकिन मेरे ख्याल में जो क्लाउड है कीपिंग इन व्यू द ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिलेशंस वो सऊदी अरेबिया का ज्यादा है। तो सऊदी अरेबिया यकीनन रोल प्ले कर सकता है, लेकिन सऊदी अरेबिया की डिप्लोमेसी जो मैंने देखी है करीब से वो ये है कि वो बहुत खामोशी से और आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं। वो बहुत ज़्यादा जो है वो बयानात नहीं देते, तो वो ये काम कर सकते हैं और दोनों ममालिक के साथ कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ममालिक के मफादात हैं, ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत गहरे हैं, इसी तरह से इंडिया की इन्वेस्टमेंट और ट्रेड, ये दोनों ताल्लुकात जो हैं सऊदी अरब से। फिर डोंट फॉरगेट के बहुत बड़े यानी पाकिस्तानी डायस्पोरा वहाँ पे है, 2 मिलियन से ज़्यादा। इंडियन डायस्पोरा जो है वो बहुत बड़ा है। तो सऊदी अरेबिया वाकई आइडियली सिचुएटेड है, पोजिशन्ड है इस रोल को अदा करने में। जी जी। सर ये भी फरमाइएगा कि जिस तरह से सऊदी अरब जिस तरह मोहम्मद बिन सलमान का विजन 2030 है और एक बहुत बड़े मंसूबे जो हैं वो चल रहे हैं सऊदी अरेबिया के अंदर, तो उसमें पाकिस्तान की जो मैन पावर है वो भी शामिल है, इसके अलावा हिंदुस्तान की जो मैन पावर है वो भी शामिल है। तो ये जो फैक्टर है कि सऊदीया दोनों मुल्कों के ऊपर किस तरह से असरअंदाज हो सकता है, ये फैक्टर कितना अहम है?
जी बिल्कुल अहम है। और यानी जितनी भी डेवलपमेंट्स हैं सऊदी अरब के अंदर, उसमें फॉरेन मैन पावर का यकीनन हाथ है, और उसमें इंडिया और पाकिस्तान दोनों अहम हैं। और उस लिहाज से जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज किया कि दोनों के साथ क्लाउड है सऊदी अरेबिया का। वो दोनों से बात, दोनों को परसुएड कर सकता है कि ये जो है कॉन्फ्लिक्ट, इसको आप कंटेन करना चाहिए, इसके जो रूट कॉजेज हैं उनको देखना चाहिए, उनका हल तलाश करना चाहिए। क्योंकि देखिए ये मामला 1947-48 से चला है, और जी बार बार इसमें जो दबी हुई चिंगारियां हैं वो फूट पड़ती हैं। बिल्कुल। और इसमें अब यह है कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ तो वाज़ेह है कि आप इस मसले का हल जो है वो यूएन की करारदादों के मुताबिक करवा लीजिए। इंडिया जो है वो कहता है कि नहीं, ये तो हमारा अटूट अंग है, बल्कि हम अगर बात करेंगे तो वो पाकिस्तानी कश्मीर के बारे में करेंगे। अब वो बात जो है, इंडिया का वो मौक़िफ़ जो है वो ये जो 3-4 दिन गुजरे हैं उसकी वजह से उसके बहुत बड़ा डेंट पड़ा है। जी तो उस लिहाज से मेरे ख्याल में अब इंटरनेशनल कम्युनिटी को, पर्टिकुलरली जो इम्पोर्टेंट मुल्क हैं लाइक सऊदी अरेबिया, उनको बात करनी चाहिए विद बोथ कंट्रीज एंड मोर सो विद इंडिया कि जी अब वक्त ये आ गया है कि इन मामलात को आप तय कर लें, ताकि बार बार ये जो है कॉन्फ्लिक्ट ना आए, वॉर की तरफ ना जाएं। दोनों मुल्क जो हैं वो एटॉमिक पावर्स हैं। और ख़ास तौर पे मैंने एक चीज़ जो नोट की है उन दिनों में, क्योंकि मेरे काफ़ी अरबिक के इंटरव्यूज हुए, वो ये था कि गल्फ कंट्रीज में एक कंसर्न था कि ये जंग अगर फैलती है तो ये तेल और गैस की तिजारत जो है, टैंकर्स जो हैं, उनके ऊपर भी असरअंदाज होगी। तो उस लिहाज से इस वॉर के अगर ये फैल जाती और आइंदा कभी फैले तो उसके इंटरनेशनल इकोनॉमी के ऊपर असरात हो सकते हैं। इसलिए इंटरनेशनल कम्युनिटी का ये फर्ज है कि इन सब चीज़ों को कंटेन करे और इन मामलात को रिजॉल्व करवाए, और इनके जो रूट कॉज है, जो बार बार ये कॉन्फ्लिक्ट छिड़ता है, उनको हल करने में मदद दें। जी सर। अच्छा, वन लास्ट क्वेश्चन सर, ये बताइएगा कि आपने बतौर सऊदी अरेबिया में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है, आपने कैसा देखा कि पाकिस्तान और जो सऊदी क़यादत है उसके दरमियान ताल्लुकात कितने करीबी होते हैं? जी देखिए, वो मैंने तो जब मैं वहाँ पे था तो ये 1980s का ज़माना है, उसको खासा वक्त गुजर गया। लेकिन मैंने जो उस वक्त से बाद से भी देखा है कि पाकिस्तान में चाहे हुकूमत कोई भी हो, हुकूमत के चेंज होने से या वहाँ पे सऊदी अरब में जो है मॉनर्क के चेंज होने से, बादशाह के चेंज होने से, क़यादत के चेंज होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये ताल्लुक़ जो है ये दो मुल्कों के दरमियान है, ये दो अवाम के दरमियान है। जी और जिसके दरमियान में एक मोहब्बत का रिश्ता है, इस्लाम का रिश्ता है, और उसके अलावा खित्ते में एक दूसरे के करीब होने का रिश्ता है, और दोनों की कमिटमेंट कि हमने इस इलाके में पीस, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के लिए मिल के काम करना है। जी, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। नाज़रीन, आपने जावेद हफीज साहब की गुफ्तगू समाअत फरमाई। उन्होंने बताया कि जो सऊदी अरेबिया है वो खित्ते में इम्पोर्टेंट मीडिएटर के तौर पे काम कर रहा है, एक अहम सालिस के तौर पे काम कर रहा है, और उसने जिस तरह से उसके पाकिस्तान और भारत के दोनों ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, तिजारती ताल्लुकात हैं, उन ताल्लुकात से लेवरेज लेकर किस तरह से सऊदी अरेबिया ने सीज़ फायर के लिए दोनों मुल्कों के दरमियान अपना किरदार अदा किया। अब तक के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।